What's up everyone, Profil here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Thursday, 9th of July and today was Sensex weekly expiry. Yesterday, because of the Trump's remarks on the ceasefire, we saw a massive sell-off in the Indian equities. Nifty fell from 24,300 to 23,800, almost 500 point का एक fall देखने को मिला in less than 30 minutes and we saw a VIX spike by almost 26%. But when the US markets opened, of course, the sentiment was negative. The first half of the trading session saw some amount of dip in the US equities as well. But in the second half, we saw a decent amount of recovery and US markets closed as if nothing has happened. And today, when our markets opened, we opened with a mild gap up. इतना ज़्यादा gap up भी नहीं था. But within the first 30 minutes, we saw a decent amount of recovery in the Indian markets. So the Sensex straddle, which had closed yesterday at somewhere around 700 rupees, opened at 480, which in my opinion was a decent enough premium. But because Sensex rallied almost 500 points in the first 30 minutes, whatever the crush we saw on the straddle went from almost 480 to 320 in the first 90 minutes. ये जो पूरा DK था, ये कुछ भी realize नहीं हो पाया because of this 500 point का up move. And then the market was trading in a sideways range, but then at 10:30 comes the mother of all spikes. Sensex out of the blue spikes by 500 points and then within the next 15 minutes spikes down by another 500 points, blasting both the calls and puts multiple times. And this 15-minute window was enough to spoil the entire day's party. It not only trapped the call writers, it also trapped put writers multiple times. Later, the markets went into a small range of consolidation with multiple whipsaws. कोई अगर चार्ट देखेगा तो उनको ऐसे लगेगा कि आज काफ़ी स्मूथ डे रहा होगा, आज सेलर्स डे रहा होगा, but trust me, options doubled and halved multiple times throughout the day and post 2 o'clock, the gamma blast was on a next level. And till 3 o'clock, it looked like it's gonna be a 77,000 pinned expiry. Of course, 77,000 calls and puts multiple times double हो रहे थे, half हो रहे थे, but somehow everyone believed that 77,000 पे expiry pin होने वाला है. But at 3 o'clock, another sharp down move comes and with straddle pricing in somewhere around 120 points, we saw a 400 point of down move in a 5-minute candle on Sensex. And finally, the put options again blasted by 10 times and last 10 minutes में even the call option 700 का call option which was trading at 6 rupees at the low, even that went all the way till 50 rupees. So it was quite a volatile day and we did plan for this day and let me know in the comments अगर हमारा जो discussion है आपको किसी भी तरह help कर रहा हो. So tomorrow is again Friday and markets are trading अराउंड 24,000 लेवल्स, जो कल 23,800 के आसपास मार्केट आके सबको डराया था, उतना डर तो नहीं है. बट टुमारो इज गोना बी एन इंपॉर्टेंट डे बिकॉज अगेन द मार्केट्स विल बी रिएक्टिंग टू द न्यूज़ एंड द मार्केट्स विल बी वेटिंग फॉर सम अमाउंट ऑफ कंफर्मेशन टू गो इन टू द वीकेंड. सो मार्केट्स ऑप्टिमिज्म के साथ वीकेंड को एंटर करेगा या थोड़ा बहुत एंग्जाइटी के साथ करेगा, वो देखना पड़ेगा. सो टुमारो डेफिनेटली वी कैन लुक फॉर सम डायरेक्शनल ट्रेड्स. लेट्स प्लान देम. लेट्स गेट टू द मिडल. ऑलराइट, अगर कोई ट्रेड आज नहीं किया होता तो हाइंडसाइट पे चार्ट्स देख के ऐसे लगेगा कि मार्केट्स एकदम शांत रहा, एकदम सेलर्स एक्सपायरी रहा. बट ट्रस्ट मी, द मार्केट्स वर नॉट एट ऑल ईजी. ठीक है, तो हमने क्लियरली डिस्कस किए थे कि कल के वीडियो पे कि अगर मार्केट्स गैप अप खुलता है तो मार्केट्स के पास एक वाइड स्पेस ओपन हो जाता है एंड कभी भी 300-400 पॉइंट्स का एक स्विंग आ सकता है मार्केट्स में एंड दैट विल हर्ट योर पोजीशंस. तो हमने डिस्कस किए थे कि फर्स्ट 90 मिनट्स तक हमको ट्रेड नहीं लेना चाहिए. तो फर्स्ट 90 मिनट्स बोले तो 9:15 से लेके 10:45 तक. एंड अगर आप देखते हैं कि दिस मूव केम समवेयर अराउंड 10:30 से लेके 10:45 के बीच में ये मूव आ जाता है एंड दिस वाज द मूव विच काइंड ऑफ स्पॉइल्ड द एंटायर डेज पार्टी. ठीक है, अगर ये मूव को कोई झेल लेता है तो देन द नेक्स्ट 2-3 आवर्स वुड बी एक्सट्रीमली स्मूथ. ऑफकोर्स यहाँ पे 1-2 बार कॉल्स डबल हो गए, यहाँ पे पुट्स डबल हो गए, बट इट वॉज क्वाइट मैनेजेबल. बट इस स्पाइक में ऑलमोस्ट कॉल्स 4 to 5 टाइम्स हो गए थे एंड इस टॉप से लेके इस बॉटम तक अगेन पुट्स 5 to 6 टाइम्स हो गए थे. तो दिस वॉज द ट्रिकी पार्ट ऑफ द डे. ऑफकोर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे यहाँ पे भी मार्केट मल्टीपल टाइम्स कॉल्स का एंड पुट्स का लिक्विडिटी अब्जॉर्ब किया एंड जब मार्केट्स ने 2 बार लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शन कर लिया, पहले यहाँ पे कॉल राइटर्स को यहाँ पे ट्रैप किया, यहाँ पे पुट राइटर्स का स्टॉप लॉस लेके वापस मार्केट 77,000 के आसपास होवर कर रहा था अराउंड 3 o'clock. देन आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट्स थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा एंड 77,000 के आसपास पिन हो जाएगा. बट देन दिस कैंडल अगेन गेव अ 400 point मूव व्हेन द स्ट्रैडल इटसेल्फ वाज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 120 पॉइंट्स. सो 3 o'clock के बाद
डेफिनेटली कंटिन्यूसली मार्केट्स बहुत ज़्यादा रैंडमली मूव कर रहा है एंड इवन फ्रॉम दिस बॉटम लेवल टू टॉप लेवल ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का एक मूव दिखाया. इन दिस द 76,700 का जो कॉल ऑप्शन था वो 6 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ तक ऑलमोस्ट हाई बना दिया था. सो टुडे आई एंडेड अप विथ अ माइनर रेड 0.2 के आसपास में रेड पे क्लोज किया, विच इज़ आई मीन एन एक्सेप्टेबल आउटकम फॉर द डे, बिकॉज यहाँ पे जैसे मार्केट्स बिहेव किया तो आई काइंड ऑफ डिसाइडेड दैट टुडे इज़ गोना बी क्वाइट अ वोलेटाइल डे एंड मैंने पोजीशन साइजिंग कम कर दिया एंड थोड़ा मतलब पोजीशन को थोड़ा डिफेंसिव तरफ से मैनेज करना शुरू किया. बट व्हेन आई साइज्ड अप हियर थोड़ा अग्रेसिवली यहाँ पे पोजीशन किया बिकॉज एक्सपेक्टिंग 77,000 का पिंड एक्सपायरी, बट अगेन दैट डिडंट गो इन माई फेवर एंड दैट्स वाई लाइक आई टू टेक अ लॉस. बट स्टिल मंथ इज decent today, but today was not an easy expiry at all. ठीक है, देर वर ऑल्सो मल्टीपल बाउट्स ऑफ स्ट्रैडल स्पाइक्स वेर स्ट्रैडल 20-30% स्पाइक हो रहा था विथ लॉट ऑफ डेल्टा मूव्स एंड लॉट ऑफ विप सॉस. ठीक है, अगर निफ्टी की डेली चार्ट की अगर बात करें, ठीक है, तो मार्केट लुक्स लाइक नथिंग हैज़ हैपेंड एटलीस्ट फ्रॉम द यूएस मार्केट्स फ्रंट एंड येस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23,800 के आसपास इतने सारे टच पॉइंट्स है. इफ़ यू नोटिस ओवर द लास्ट 40 ट्रेडिंग सेशंस तो यू कैन नोटिस दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑलमोस्ट 10 to 11 टच पॉइंट्स है 23,800 के आसपास. तो अगर हमको 23,800 के नीचे एक डेली क्लोज मिलता है तो देन इट विल ओपन अप फर्दर डाउन साइड एंड 24,500 जो है वो इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर at least a week or so until unless we get some sort of a really positive news. So जिस हिसाब से geopolitical scene चल रहा है, I'm not very optimistic about any positive news and markets again 24,000 and 23,500 के बीच में hover कर रहा है and you can notice that today India VIX again fell by almost 9%. कल 26% spike हुआ था, आज 9% crush हुआ है, which means that जो कल US markets ने जो response दिया तो दैट वॉज काइंड ऑफ कंफर्टिंग फॉर द अदर मार्केट्स, बिकॉज अगर कल यूएस मार्केट भी 1.5-2% नीचे क्लोज करता तो देन आज भी मार्केट्स थोड़ा एलिवेटेड वॉलेटिलिटी पे ट्रेड करता. बट बिकॉज द यूएस मार्केट्स बिहेव्ड एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, इट वॉज काइंड ऑफ रीअश्योरिंग फॉर द अदर मार्केट्स एज वेल. सो निफ्टी का स्ट्रैडल की अगर बात करेंगे तो येस, yesterday it was trading at 260 and suddenly it spiked to 410 and by today again the markets are back to 260 levels. तो कल स्ट्रैडल कहाँ पे खुलेगा एंड कहाँ पे बंद होगा ये थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है. अगर मार्केट्स 24,000 के ऊपर ट्रेड करेगा फॉर द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द डे देन येस 250 के नीचे स्ट्रैडल क्लोज दे सकता है एंड अगर मार्केट्स 23,800 के आसपास होवर करेगा एंड अगर ब्रेकडाउन दिखाने का ऑलमोस्ट एज पे रहेगा तो देन वी माइट इवन सी स्ट्रैडल ट्रेड एट समवेयर अराउंड 300. अगर कल स्ट्रैडल 300 पे क्लोज होगा तो भी सरप्राइज नहीं है, बिकॉज जैसे मार्केट्स इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा देयर विल बी अनदर बाउट ऑफ फियर दैट्स गोना सेट इनटू द मार्केट्स. ठीक है, नाउ लोअर टाइम फ्रेम पे अगर जाके प्राइस एक्शन की बात करेंगे, बिकॉज टुमारो ट्रेडिंग डेल्टा न्यूट्रल और प्योरली शॉर्ट वॉल इज प्योरली अ नो, इट्स अ बिग नो, बिकॉज आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि मार्केट्स कहाँ पे स्ट्रैडल को ओपन करेगा, कहाँ पे स्ट्रैडल क्लोज करेगा एंड यू विल नॉट इवन गेट टू अंडरस्टैंड हाउ द स्ट्रैडल बिहेवियर वुड बी, बिकॉज एक छोटा सा एक 5 मिनट का कैंडल पे स्ट्रैडल स्पाइक करेगा. अगर आप सोचोगे कि हाँ ये 5 मिनट का स्पाइक है एंड थोड़ा बहुत वापस कूल ऑफ हो जाएगा, बट देन दैट स्पाइक वाइट कंटिन्यू, बिकॉज यहाँ पे अगर कल का जो बिहेवियर देखोगे तो इट वॉज अ सिमिलर काइंड ऑफ अ बिहेवियर, राइट. तो कल जो लोग यहाँ पे सोचे होंगे कि 268 से 280 के आसपास स्ट्रैडल है, इट्स अ डिसेंट स्पाइक, लेट मी शॉर्ट इट. दैट स्पाइक वेंट ऑन स्पाइकिंग. जो 280 पे शॉर्ट किया है वो 300 को एग्जिट करेगा. समवन विल कम एंड से दैट ओ डे हाई के आसपास स्ट्रैडल आया, 300 पे मैं शॉर्ट करूंगा, देन इट वेंट टू 350, देन इट वेंट टू 400. तो टुमारो ऑल्सो सिमिलर थिंग कैन हैपन. तो शॉर्ट ट्रेड अगर करना है तो मार्केट्स अगर 24,000 के आसपास होवर कर रहा हो तो देन हम लोग एक शॉर्ट वॉल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विथ दिस एंड दिस एज सम सॉर्ट ऑफ अ स्टॉप लॉस. मतलब मार्केट्स जब तक इस रेंज के बीच में ट्रेड करता रहता है हम लोग 24,000 के स्ट्रैडल में रह सकते हैं, बट जैसे मार्केट इसके ऊपर एक 15 मिनट का क्लोज दे देता है वी शुड take whatever the profits or losses that has been given by 24,000 straddle and we should just exit. ठीक है, नाउ प्राइस एक्शन ट्रेड्स की बात करेंगे तो अगर मार्केट
आज का जो लास्ट 15 मिनट्स का जो प्राइस एक्शन है उसके बीच में अगर ओपन होता है, दैट इज समवेयर अराउंड हियर, यहाँ पे अगर ओपन होता है तो देन जैसे ये ब्रेकडाउन होगा हम लोग यहाँ पे ब्रेकडाउन वाला ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए एंड इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। यू कैन नोटिस दैट दिस इज समवेयर अराउंड 50 पॉइंट्स ऑफ स्टॉप लॉस एंड मोस्ट प्रोबेबली 920 से लेके हम लोग कल का जो लो है 23,800 तक, यहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट। तो 1:2 काइंड ऑफ अ ट्रेड है। तो अगर एक बार आपको स्टॉप लॉस हिट होता है तो अगर दूसरी बार अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग एक बार री एंट्री भी कर सकता है। नाउ अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है, ठीक है, बड़ा गैप डाउन खुलता है तो देन डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ टेकिंग अ मीन रिवर्शन ट्रेड टुमारो, ठीक है, बिकॉज मार्केट्स ने आज एक प्रॉमिसिंग क्लोज दिया है, लाइक 24,000 के आसपास फिर से होवर कर रहा है, 23,800 के आसपास से एक ऑलमोस्ट अच्छा खासा एक डिमांड आया है। नाउ अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसके नीचे मार्केट्स ट्रेड नहीं करना चाहिए, मार्केट्स इधर से कंटिन्यूसली ऊपर जाना चाहिए। तो अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ हर बार हम जैसे मीन रिवर्शन ट्रेड करते हैं यहाँ पे मीन रिवर्शन ट्रेड मत लो। इंस्टेड यू लुक फॉर अ ब्रेकडाउन ट्रेड। यहाँ पे आप ब्रेकडाउन ट्रेड डायरेक्टली ब्रेकडाउन के बाद लेते हैं या पुल बैक के बाद, बेसिकली रीटेस्ट के बाद लेते हैं, वो आपके ऊपर है। बट अगर यहाँ पे ट्रेड लेना है तो टेक अ ब्रेकडाउन ट्रेड एंड अगर हमको बेरिश ट्रेड लेना है तो द प्रिफर्ड स्ट्रक्चर इज अ डेबिट पुट स्प्रेड। यहाँ पे हम लोग डेबिट पुट स्प्रेड ट्रेड कर सकते हैं एंड यहाँ से हम लोग कम से कम 1:3 का टारगेट हम लेके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। वेयर शुड बी इनिशिएट अ बुलिश ट्रेड? अगर इंट्राडे के लिए हम लोग बुलिश ट्रेड इनिशिएट करना है वो कब करना है? इट इज ओनली इन वन सिनेरियो वेयर द मार्केट ओपन्स विद अ बिग गैप अप। मान लो 250 पॉइंट्स के साथ गैप अप खुलता है, 700 के आसपास गैप अप खुलता है, देन फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल फॉर्म होने के लिए देना है एंड फर्स्ट 5 मिनट का जो हाई है अगर वो ब्रीच हो जाता है तो देन विल टेक अ बुलिश ट्रेड विद द लो ऑफ द फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल एज सम सॉर्ट ऑफ अ स्टॉप लॉस। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो रीजन टू बी टेकिंग अ बुलिश ट्रेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज अ वेरी गुड सप्लाई जोन। मल्टीपल टाइम्स मार्केट्स ने 23,100 को ब्रीच करने को ट्राई किया है बट मार्केट्स को कंटिन्यूसली यहाँ पे इनिशिएटिव सेलर्स आके सेल किए हैं। 4-5 टाइम्स ऑलरेडी सिमिलर यहाँ पे है। तो अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है, दैट इज 24,070 के आसपास खुलता है एंड देन ब्रेकआउट होता है, देन ओनली वी कैन टेक दिस पर्टिकुलर ब्रेकआउट ट्रेड विद सम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस। बट मैं बोलता हूं कि यहाँ पे 70% प्रोबेबिलिटी है इसका स्टॉप लॉस हिट होने का। बट अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है एंड यहाँ पे मार्केट आता है तो देन मोस्ट प्रोबेबली दिस एक्चुअली ऑफर्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड टू एक्चुअली टेक अ शॉर्ट ट्रेड आफ्टर ऑब्जर्विंग सम सॉर्ट ऑफ अ डबल टॉप पैटर्न ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम। आप 1 मिनट पे डबल टॉप पैटर्न होने दो या एक रेड एनगल्फिंग कैंडल का एक कॉम्बिनेशन होने दो या वीकली ऑप्शंस पे कुछ लिक्विडिटी स्वीप अगर मिल जाता है तो उसको यूज करके हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 24,100 के आसपास अगर हम लोग शॉर्ट ट्रेड लेंगे तो 30 पॉइंट्स के साथ स्टॉप लॉस रहना चाहिए एंड 24,980 के आसपास एक 100 पॉइंट्स का हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 1:3 का ये ट्रेड है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिंस इट्स अ 1:3 काइंड ऑफ अ ट्रेड वी कैन इवन टेक 2 री एंट्रीज एज वेल। बट मैं 2 री एंट्री में प्रीफर नहीं करूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली मैं 1 री एंट्री मैं यहाँ पे भी ट्राई करने वाला हूँ। सो कल के लिए हमारे पास 3 शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज है एंड एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ऑल्सो द मार्केट्स माइट बी वोलेटाइल बिकॉज मार्केट्स रैंडम 30-40 पॉइंट्स का कैंडल फॉर्म कर रहा है। तो पोजीशन साइज को थोड़ा छोटा रखो, स्टॉप लॉस को थोड़ा वाइड रखो सो दैट यू कैन गिव द मार्केट सम अमाउंट ऑफ ब्रीदिंग स्पेस टू नॉट गेट चॉप्ड इन दिस रैंडम 3 मिनट 5 मिनट का वोलेटिलिटी, ठीक है। आई होप यू गाइस यू हैड अ डिसेंट एक्सपायरी। लेट मी नो कमेंट्स आज का एक्सपायरी कैसा रहा। बाकी आई विल सी यू आफ्टर टुमारोज मार्केट एक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.